Important word. Yes. EMBARGO, embargo, and prohibition, suspension, omission. Now, antonyms of the word: permission, sanction, acceptance, welcome. Now, execute, 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 मृत्युदंड देना. Synonyms of the word: kill, murder, assassin. Important word. Yes. In find the error, na? No, no, no. Spelling error. ASSIEN. Assassin. Eliminate, perform, accomplish, carry out. Also important word. And implement. Now, antonyms of the word: breed, beget. Important word. BEGET. Bear, yield, procreate, neglect. Now, exempt, 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 mukt. Synonyms of the word: excuse, exclude, shield, let off. Important word. Let, OFF, off, let off. Now, antonyms of the word: hold, make, accountable, enforce. Next word: exemption, 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 छूट. Synonyms of the word: immunity, impunity, indemnity, and dispensations. Now, antonyms of the word: inclusion, obligation, liability, accountability, and answerability. Now, exhibit, 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 प्रदर्शित करना. Synonyms of the word: show, reveal, manifest, and evince. Now, antonyms of the word: conceal, hide, secret, and camouflage. Important word. CAMOUFLAG. Camouflage. Mask and disguise. Next, exalt. EXHORT. Exhort. Exhort means प्रेरित करना. Synonyms of the word: encourage, prompt, urge, adjure. Adjure also important word. ADZURE. Adjure. Now, antonyms of the word: cover, deter, and discourage and dissuade. Next word: exonerate. Important word. EXONERATE. Exonerate. Synonyms of the word: absolve, exculpate, acquit, vindicate. Also important word. VINDICATE. Vindicate and discharge. Now, antonyms of the word: criminate, accuse, incriminate, and convict. Next, exorbitant. EXORBITANT. Exorbitant, अत्यधिक. Synonyms of the word: excessive, unwarranted, inordinate, plethoric, undue. Important word. PLETHORIC. Plethoric, undue, unreasonable. Now, antonyms of the word: moderate, cheap, modest, reasonable. Now, exotic. EXOTIC. Exotic, अनोखा या अन्य देश का. Synonyms of the word: bizarre. Important word. This word came in a YLT 2018. BIZARRE. Bizarre. And glamorous, marvelous, fascinating, and alien. Important word. ALIEN. Now, antonyms of the word: familiar, native, normal, common, regular. Next word: expand. विस्तार करना. Synonyms of the word: amplify, elaborate, enlarge, swell, broaden. Now, antonyms of the word:
abbreviate, abridge, diminish, shrink, condense, shorten, curtail, important word curtail, curtail, and truncate, also important word truncate, truncate, and trim. Now, yes, expand diet, expedite, expand diet, शीघ्रता करना. Synonyms of the word quicken, hurry, exhilarate, speed up, and hasten. Now, antonyms of the word delay, hinder, halt, retard, slow, cease, and decelerate. Now, next word explicit, 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 spust. Synonyms of the word definite, clear, obvious, apparent. Also, important word apparent. Now, antonyms of the word hidden, vague, equivocal, doubtful, implicate. Now, next word exquisite, 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 अति सुंदर. Synonyms of the word elegant, magnificent, splendid, charming, ethereal, important word ethereal, and gorgeous. Now, antonyms of the word coarse, gross, flat, unkempt, important word unkempt, unkempt. Now, today's last word of word power extol, 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 प्रशंसा करना. Synonyms of the word praise, exalt, admire, laud, applaud. Antonyms of the word is deprecate, castigate, censure, condemn, and deplore. Yes, do you have any problem? Then we discuss here. Yes. Thank you. Thank you very much. चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना? थैंक यू मैम. Most welcome. जस्ट वेट. मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी साथियों को? जी. Yes, sir. रिप्लाई एनीवन? कहाँ तक हुआ था कल? किसी को कुछ आइडिया है? जी. बिल्कुल. आप सब लोग नए नए जुड़े हैं क्या? लग रहा है कि बोल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मामला. पुराने साथी नहीं है लग रहा कोई. नए हैं तो क्या हुआ है, बोल सकते हैं, है ना? सर रेनेसा का कंप्लीट माइक हो गया किसी का था. रेनेसा पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा. रेनेसा के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ रहे थे. यस सर. एलिजाबेथन एज तो हो गया था. यस सर. वो पोएट्स डिस्कस कर रहे थे सर. इम्पोर्टेंट जैकोबियन एज, जैकोबियन उनके एज पोएट्स. में चल रहा था. पॉइंट भी, हाँ ये भी हो गया था. जैकोबियन एज हम लोग पढ़ रहे थे. शायद जैकोबियन का भी कुछ हिस्सा कवर कर लिया था हम लोगों ने. सर ये बेन जॉनसन, हाँ फ्रांसिस बेकन, इनको डील कर रहे थे हम लोग. हाँ 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 इनको कर रहे थे. अब जो है ये अगला पॉइंट था हमारा जैकोबियन एज का. पोएट्री से चलेगा. मेटाफिजिकल हाँ, पोएट्री से हाँ, स्टार्ट होगा. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद.
हिस्टोरिक बैकग्राउंड हम इसका देख चुके थे। जैकोबियन एज कब से कब तक आता है? 1603 टू 1625। हिस्टोरिक बैकग्राउंड हो चुका था। राइटर्स हमारे हो गए थे। मेटाफिजिकल पोएट्री आज हम लोगों को डील करनी है। देखते हैं, द मेटाफिजिकल पोएट्री इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पोएट्री। क्या डिफरेंस है इसमें? देयर आर टोटली 5 मेटाफिजिकल पोएट्स इन पोएट्री एंड दे आर जनरली जो है मेटाफिजिकल पोएट्स वो होते हैं जो ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जो मतलब हाई लेवल के फिलोसफिकल चीजों की बात करते हैं। ऐसे जो पोइट्स राइटर्स होते हैं वो सब मेटाफिजिकल। हालांकि जब हम टर्म अभी पढ़ेंगे इसके बाद टर्म्स एंड मूवमेंट्स, उसमें इसको हम विस्तृत से बात करेंगे कि मेटाफिजिकल क्या होता है, मेटाफिजिक्स क्या है, इसके टर्म्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्योंकि जनरली फीचर्स से क्वेश्चन देख रहे हैं 2021 के पेपर में क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो चीजों को बहुत ही शॉर्ट में चीजें जानते हुए चलेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्री के जो प्रोमिनेंट राइटर हैं, नंबर 1 आपका जॉन डन आता है, एंड्रू मार्वेल है, हेनरी वॉगन्स है, जॉर्ज हर्बर्ट है, रिचर्ड क्रासा। अब इसे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि व्हिच पोएट या व्हिच ऑथर इज नॉट रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोएट्री और व्हिच दीज राइटर्स आर रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोएट्री। तो 4 ऑप्शन में से आपको जो है 3 दे देगा जो मेटाफिजिकल पोएट्री के होंगे, एक नॉन मेटाफिजिकल का होगा, उसको फाइंड आउट करना होगा, या फिर जो है 3 में से जो है कोई एक आपको मेटाफिजिक्स दे देता है, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना होता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है क्रिएट होता है। जॉन डन इज ए नोन एज द लीडर ऑफ द मेटाफिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि मेटाफिजिक्स पोएट्री के जो है लीडर किसे माना जाता है? वो जॉन डन को माना जाता है। व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री की कॉमन फीचर्स क्या 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 थे, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। Metaphysics poetry is characterized by the subtle complex and the concentrate tough। मतलब थोड़ा इनकी लैंग्वेज है, हर चीज जो है थोड़ा टफ होती है। इट इज ए इंटेलेक्चुअल रिलीजियस डिगोरस। ये जो है इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड चीजें जो है करते हैं, बहुत ही कठिन चीजें ज्यादातर यूज कर लेते हैं लोग। इट इम्प्लाइज बोल्ड एंड द इंजेनुअस कंसीट। कंसीट टर्म ऊपर जो है हम लोग यूज कर ही चुके हैं, जब डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की तुलना कर दी जाए कंसीट हो जाता है। आल्सो कॉल्ड द मेटाफिजिकल कंसीट। जो जॉन डन जो है इसके मेन जो है यूज करने वाले माने जाते हैं, इसको मेटाफिजिकल कंसीट को। जॉन डन कॉल्ड इट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसिमिलर इमेजेस। ये ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसिमिलर इमेजेस। ये किसके लिए? ये इतना ही दे करके आपसे पूछा सकता है रिफर टू, तो फिर कंसीट होगा ऑप्शन में। अगर कंसीट ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर सीधे सीधे मेटाफिजिकल अथर या मेटाफिजिकल राइटिंग से आप उस पर जा सकते हैं। अगला है 4 नंबर का, इट इम्प्लाइज अनयूजुअल इमेजेस टेकन फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स फ्रॉम नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैथमेटिक्स। एक चीज और है, यहाँ पर साइंस से भी ये लोग ले लेते हैं। एक आपने जो है मेटाफिजिक्स पोएट्री का देखा होगा, प्यार का जो है वो उदाहरण देते हैं, एक दो प्रेमी और प्रेमिकाओं का आपस में मिलन की बात करते हैं, तो उसमें H2 करके और वो CO2 मिलाया, ये मेटल मिला, तो जैसे केमिस्ट्री का एक अपना फार्मूला होता है, ऐसे फार्मूला बना करके वो पूरा दे देते हैं। जैसे मुझे याद नहीं आ रहा क्या चीजें हैं, आप लोग देखे होंगे तो उसको मिला होगा। तो इसको जो है आप ध्यान रखिए कि साइंस भी ये लोग जो है उसमें इंक्लूड कर देते हैं। मतलब अपनी राइटिंग में जो है आपसे पूछा सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ ऑथर इंक्लूड ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैथमेटिक्स, साइंस इन हिज राइटिंग्स। तो ये ध्यान रखिए, ये सब मेटाफिजिक्स के ही टर्म्स हैं। मेटाफिजिकल जो राइटर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें खुराफाते की जाती थी। इट हैज अ ड्रामेटिक क्वालिटी टू इट एंड ऑफन हैज एन अब्रप्ट अग्रेसिव ओपनिंग। ज्यादातर इनकी अचानक और अग्रेसिव ओपनिंग होती है। इट फ्रिक्वेंटली मेक्स यूज द पैराडॉक्स। विथ दिस वी कंप्लीटेड द जैकोबियन पीरियड ब्रीफली। नाउ लेट्स स्टडी द कैरोलिन पीरियड आल्सो वेरीफाइड। अब हम आगे जो है कैरोलिन पीरियड पढ़ेंगे। ये जैकोबियन एज की कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर थी। आगे हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मैं सबसे पहला तो यही आ जाता है मेटाफिजिकल कंसीड,
ये इस एज के जितने भी राइटर्स थे सबका जो है एक फेवरेट डिवाइस माना जाता है। और कुछ जो राइटर्स हैं वो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, कौन कौन से राइटर हैं। कार्पे डीम इस जो है एज के जितने भी राइटर्स ज्यादातर यूज करते हैं। कार्पे डीम टर्म जो बहुत पूछा जाता है, 2021 में भी पूछा गया टीजीटी में। सीज ऑफ द डे ये भी पूछा गया, सीज ऑफ द डे। और कार्पे डीम का से दो क्वेश्चन बने थे, एक तो ये था और दूसरा था विलियम शेक्सपियर और कार्पे डीम से एक क्वेश्चन था जो मिसमैच करके आया था, 4 ऑप्शन था। और रिवोल्यूशन था, एक विलियम से वर्ड्सवर्थ था और विलियम शेक्सपियर करके कुछ था। तो 2 क्वेश्चन कार्पे डीम से 2021 में बने हैं। रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी इनका जो है फेवरेट डिवाइस रहा है। आयरनी, आयरनी क्या होता है कि जो चीजें कही जा रही हैं उसका जो है मीनिंग अपोजिट निकल रहा हो बट दूसरा कोई सार्थक मीनिंग निकल रहा हो, तो वो आयरनी कहलाता है। जैसे नॉर्मल सी बात कही जाए कि आयरनी से कंफ्यूजन हो जाता है, आयरनी, लैटोटिस और पैराडॉक्स, तो इन सब चीजों में कंफ्यूजन थोड़ा रहता है। लेकिन ये सारी चीजें हम बड़ा बारीकी से कवर करेंगे जब लिटरेरी टर्म्स एंड मोमेंट को हम कवर करेंगे। पैराडॉक्स जनरली जो है इस फील्ड का जो है इस एज का महत्वपूर्ण जो है डिवाइस रही है। तो कौन कौन सी डिवाइसेस रही हैं जैकोबियन एज में? पहला तो रहा आपका मेटाफिजिक्स कॉन्सेप्ट, दूसरा कार्पे डीम रहा, फिर रिवेंज ट्रेजेडी रहा। और रिवेंज ट्रेजेडी जो है जैसे आपका विलियम शेक्सपियर का हेमलेट है, तो ये इसी एज में जो आता है और ये रिवेंज ट्रेजेडी माना जाता है इसका। आयरनी, आयरनी वेबस्टर का जो है द डचेस ऑफ माफी, इसमें काफी आयरनी का यूज किया गया है। पैराडॉक्स भी जो है काफी यूज किया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा एरा है वो कैरोलिन पीरियड। कैरोलिन, द डेथ ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, ये सबसे पहला यही बन जाता है कि किस जो है किंग के डेथ के बाद जो है स्टार्ट होती है। तो जेम्स फर्स्ट, आफ्टर द जेम्स फर्स्ट ब्रिटेन, गलत लिखा है क्या? चार्ल्स फर्स्ट होगा। द ग्रेट ब्रिटेन वाज द रूल्ड बाय द हिज सन चार्ल्स फर्स्ट। हाँ सही है, ये गलत हो गया, ऊपर वाला नहीं होगा ये। इनकी डेथ के बाद ये लिखा है यहाँ पर, इनकी डेथ के बाद जो है चार्ल्स फर्स्ट आते हैं। फॉर 24 ईयर्स एज 1625 AD टू 1649 AD। द टर्म कैरोलिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैरोलिन जो वर्ड है कहाँ से आया है? वो लैटिन से आया था। अभी जैकोबियन जो ऊपर पढ़े थे तो वो भी कहाँ से आया था? लैटिन से आया था। अच्छा, जो जैकोबियन था वो जेम्स के नाम पर बना। इनके जो लड़के थे कैरोलिन, तो उसके नाम से चार्ल्स है, चार्ल्स था, सॉरी चार्ल्स जो है चार्ल्स के नाम पर बना। किंग चार्ल्स इज ऑफ्टन कॉल्ड द चार्ल्स ऑफ मार्टेल। तो ये जो चार्ल्स फर्स्ट थे, तो चार्ल्स फर्स्ट का बिहाइडेशन कर दिया जाता है 1649 में। और उसके बाद जो है ये एज वहीं से स्टार्ट, सॉरी वहीं से एज जो है फिनिश मानी जाती है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, द कैरोलिन पीरियड वाज द सब्जेक्ट टू द ग्रोइंग द रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल disharmony between the King Charles I and the supporter known as the Royalist Party and the English Parliament। उस समय जो इंग्लिश पार्लियामेंट और जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनके बीच में काफी जो है डिसिमिलरिटीज रही, कुछ चीजों को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट, रिलीजियस कॉन्फिडेंट ज्यादा रहता था, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस जो है कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम ज्यादा रहता था। और जो चर्च और वो की बातें हुआ करती थी और जो पोप की बातें थी, तो उनमें थोड़ा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का भी मामला चलता रहता था। और उसी दौरान जो है प्यूरिटन जो थे, जो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, वो इनके अगेंस्ट होते रहे। प्यूरिटन्स डोमिनेंट्स मेंबर्स नोन एज द प्यूरिटन अपोजिशन। पार्लियामेंट में जो है जितने भी लोग थे इनके अगेंस्ट में सारे प्यूरिटन कहलाए। इंक्रीजली द अपोज द किंग्स पॉलिटिक्स अटेम्प्ट टू द कर्ब्स हिज अथॉरिटी। This led it to the several confrontations of the disagreement between the kings and the parliament। किंग और पार्लियामेंट के बीच में कई जगहों पर जो डिसएग्रीमेंट हुआ और स्थितियां ऐसी बनी कि जो है सिविल वार टाइप में वहां पर होने लगा। किंग इंग्लिश सिविल वार और इंटरनल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट, कवेलियर जिन्हें कहा जाता था, जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, ये भी क्वेश्चन बनता है, उन्हें कवेलियर कहा जाता है। सपोर्ट द पार्लियामेंट अराउंड हेड कॉल्ड द प्यूरिटन्स आर द रिफॉर्मेटिव पर्सन्स। कस्टम वेयरिंग द ईयर द कट द शॉर्ट 1632 एंड 1649। ये ऐसा एरा था जिसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल चरम पर आ गया। और इसी दौरान जो है एक गौरिल्ला युद्ध की जो है शुरुआत यहीं पर मानी जाती है, किसी पीरियड में हुई, छुप करके वार करने वाला। रिजल्टेड द एक्सर्ट ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड ऑफ द अरिस्टोक्रेसी
gave way the Puritans interregnum Commonwealth period। रिजल्ट आया कि चार्ल्स फर्स्ट के बाद जो है प्यूरिटन इंटरगनम जो है आ गया। द करोलिन पीरियड विच encompassed the reign of the King Charles I of England conclude the executions outside the banqueting house in 16। कहाँ पर हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। 1649 और डेट भी इसकी आगे डेट है आपको मिलेगी। He was the indeed beheaded on January 13, 1649। जनवरी 30, 1649 को जो है किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है पब्लिकली। द एक्सक्यूशन मार्क द एंड ऑफ द मोनार्की, इसी से मोनार्की का एंड हो जाता है। एंड ऑफ द इस्टेब्लिश द कॉमनवेल्थ इस्टेब्लिश होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा जो है चीजें ये पहले से मैनेज करी जाती हैं, पार्लियामेंटेरियन को लीड किया जाता है। और वही जो ओलिवर क्रॉमवेल होते हैं ये भी गुरिल्ला युद्ध की हिसाब से ही जो चीजों को जो जीत लेते हैं और प्यूरिटन इंटरगनम पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। अगला है आपका हु आर द नोटेबल राइटर्स वर्क्स एट, ये इंपॉर्टेंट है, एज आपका बहुत, सॉरी ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी 30, 1649 जो बेहेडेड डेट है, और ये प्लेस भी है बैंक्वेट हाउस इन 1649। दो तीन चीजें इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है। हु आर द नोटेबल राइटर्स एंड वर्क्स ऑफ दिस एज, क्योंकि इस पूरे बेहेडेशन में माना जाता है कि जॉन मिल्टन का जो है काफी अहम रोल था, क्योंकि उस समय की जो राइटिंग थी वो काफी रिवोल्यूशनरी राइटिंग हुआ करती थी जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन इस एज के सबसे प्रमुख राइटर माने जाते हैं। जॉन मिल्टन ही पब्लिश द एरोपजेटिका 1644। ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है क्या ये प्रोज वर्क है, जनरली प्रोज वर्क कंसिडर किया जाता है, बट पंफलेट अगर आ जाए दिमाग क्वेश्चन में तो दिमाग में इस चीज को रखिएगा। प्रमोटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी क्वेश्चन आपको मिला होगा, कई बार पूछा आता है। अगला है मेजर प्रोच, जो अदर के राइटर्स हैं कौन कौन से थे, रॉबर्ट बर्टन एंड सर थॉमस ब्राउन, ये जो समय के प्रोच राइटर्स थे। और दो तीन चीजें और देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले चीज कवालियर पोइट कौन होते थे, कवालियर होते थे जो राजा के सपोर्ट में चीजें लिखते थे, और राजा मतलब रॉयलिस्ट सपोर्टिंग में जो थे वो सारे के सारे जो है कवालियर पोइट्स कहलाते थे। और बाकी जो प्यूरिटन थे तो वो पार्लियामेंटियन थे। कॉमन फीचर ऑफ द पोइट्री ऑफ कवालियर, कवालियर पोइट के जो फीचर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बस इतने रखेंगे, क्योंकि जितना जो है चीजें हम लोग करते जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा थोड़ा करते जाएं और एब्जॉर्ब करते जाएं अपने माइंड में। ये चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। जो साथी नोट्स की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे के नोट्स जो है आपको तैयारी जोन के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जा रहे हैं। आप टीजीटी सेगमेंट में जाइएगा, नोट्स फॉर टीजीटी, वहां पे क्लिक करिए तो हिस्ट्री के सारे नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। और राइटर्स के भी हैं, विलियम शेक्सपियर के भी मिलेगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ही अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और नेक्स्ट राइटर जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे तो उसका भी आपको नोट्स वहां पर मिल जाएगा। तो लिटरेचर जनरली हम 3 सेक्शन कर रहे हैं पर डे, लिटरेचर का, वोकेब का और ग्रामर पे प्रैक्टिस करना है। आज तो आप लोगों के लिए वो भी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है, तैयारी जोन के जो क्लासरूम है टीचमेंट पे उसी पे टेस्ट भी चल रहा है, मॉडल टेस्ट चल रहा है 125 क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, नहीं अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट करिए उसको जाकर के, ताकि आप अपना एवोल्यूशन भी कर लीजिए कि हम कितने पानी में हैं अभी, कितने हमको और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है। जनरली बिहार वाले सिलेक्शन ले रहे हैं अपना, एमआरएस वालों ने ले लिया है सिलेक्शन, ये केवीएस एनवीएस वाले सिलेक्शन ले रहे हैं। जिनको सिर्फ यूपी चाहिए वो अभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं में से हम भी एक हैं। तो सिर्फ टीजीटी पे ही फोकस्ड है, सिर्फ टीजीटी पे फोकस्ड जो लोग साथी हैं बराबर हमसे जुड़े रह सकते हैं, किसी दूसरी एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी ये हमारा जो लिटरेचर का पोर्शन है हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं सेक्शन, और वो केब आपका हो गया है। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए हमको, इसके बाद जो है हम ग्रामर के प्रैक्टिस के लिए आपके सामने पुनः उपस्थित होते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लंबा लाइन पे बने रहिए सब।
जी, एम आई ऑडिबल? आवाज मिल रही है हमारी? Yes, sir. अच्छा, बाकी लोगों को नहीं मिल रही है लग रहा है, क्यों? बाकी लोगों को भी मिल रही है क्या? यस सर, मिल रही है। चलिए, थैंक यू। हम लोग जो है ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रामर में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच डील कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने अभी तक के कई टॉपिक कवर कर लिए हैं और कल जो है हम लोगों ने आर्टिकल कवर किया था। आज जो है हम लोग कंजक्शन कवर करेंगे। देखिए, ये जो ये डीएफ है सारी, ये सारी की सारी अपलोड कर दे रहा हूँ। कल का जो हम लोगों ने आर्टिकल पे किया था वो भी पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है। तो जो भी सेक्शन है ग्रामर का, आपको नोट्स ग्रामर पे मिलेगा, लिटरेचर का लिटरेचर में मिलेगा, वोकैब का वोकैब मिलेगा। आप पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल है, प्लेटफॉर्म पूरा फ्री ऑफ कास्ट है। हम जानते हैं कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं यहाँ पर जो कई कोचिंगों में 5,000, 6,000, 10,000 रुपए दे चुके, दे के अभी जो है कहाँ तक आखिर 5,000 रुपए कोचिंगों में दिया करेंगे। तो अभी अपने नॉलेज को मेंटेन करना है और उस मेंटेनेंस के लिए जो है आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। अब भाई जो 5,000, 6,000 इनको दे चुके हैं, दोबारा बैच फॉर्म करेंगे, वो आप फिर से जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंसेशन कर देंगे, लेकिन पैसा तो लेंगे ही लेंगे। आप अपने नॉलेज को बराबर मेंटेन करने के लिए हमसे प्रॉपर जुड़े रह सकते हैं और ये क्लासरूम फ्री ऑफ कास्ट है, अपने साथियों को भी प्रमोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ताकि जो है यहाँ पर ठीक ठाक संख्या और अच्छी खासी हो जाएगी तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। चलिए, हम प्रेजेंट कर रहे हैं आज का प्रैक्टिस पेपर ऑन कंजंक्शन। जिनको आवाज मिल रही है वो जवाब दे सकते हैं, जिनको आवाज नहीं मिल रही है वो चुपचाप रह सकते हैं, और या फिर जिनके यहाँ शोर है वो भी चुपचाप रह सकते हैं। पता चले कि घर की खुशबू यहाँ आने लगे, ऐसा ना हो। आप दिख रही स्क्रीन हमारी? नहीं दिख रही है। दिखने लगी जी? यस सर। लाइव सेशन का मतलब होता है कि आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, वरना वीडियो बना के पोस्ट कर देना ये ज्यादा बढ़िया लगता है। भाई अगर आप वन वे नॉलेज ग्रहण करना चाह रहे हैं तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग वहां देख सकते हैं चीजों को। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब जो है आप एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, ताकि जो है आपका भी एक जो नॉलेज लेवल है वो बरकरार रहे, बना रहे। उस हिसाब से जी, एक मिनट। जी, एम आई ऑडिबल? काइंडली रिप्लाई। यस सर, यस सर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अंटिल आई वाज स्टिल अ लिटिल वीक, आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। जब तक कि मैं अब भी कमजोर हूं, फिर भी मैंने जो है चलने का इरादा किया, ये निर्णय लिया। तो गड़बड़ हो रहा ना, अंटिल नहीं आएगा यहाँ पर। अंटिल जब तक का सेंस नहीं देगा, यद्यपि का सेंस देगा। यद्यपि आई वाज स्टिल अ लिटिल, सर यद्यपि कंडीशन मैं तो अब भी कमजोर हूँ। आल्दो कर देंगे, आल्दो।
although I was हाँ, still yes, sir. a Although- little, although करते हैं इसको, although until की जगह सही हो जाएगा। किस पार्ट में दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि आगे सर स्टिल लगा हुआ, स्टिल होता है, एट होता है आगे, तो पहले अल्दो आता है, उसके अकॉर्डिंग से सोचा मैंने। हाँ हाँ हाँ, आपने बहुत बढ़िया सोचा। इसी तरह सोचते रहिए और सोचते सोचते सिलेक्शन ले लीजिए, है ना। बढ़िया बढ़िया Yes, सोचिए sir. और सिलेक्शन ले लीजिए। और सही किस पार्ट में आ जाएगी दिक्कत? डी पार्ट में। अगला बताइए भाई, इफ यू रेंट अ होम नियर योर ऑफिस, इफ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस, it will save your time as well as money, as well as money। क्यों? सर आल्सो As well मिस्टेक लग रही है। as money, हाँ also है superfluous है, यस सर, also सुपरफ्लुअस लग is रहा है मुझे सर। superfluous, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ also is superfluous, क्योंकि as well as के बाद सीधे जो है ऑब्जेक्ट देना होगा हमको, नाउन प्रोनाउन जो भी है। किस पार्ट में आ गई दिक्कत? बी पार्ट में। नॉट विथ स्टैंडिंग, इसमें डी पार्ट में भी एरर है सर, इसमें डी पार्ट में भी एरर है सर, डी पार्ट में भी एरर है। इट विल सेव योर टाइम होगा, इट विल सेव योर टाइम, यहाँ भी एरर हाँ है। हाँ हाँ, योर यहाँ पर योर टाइम, यू टाइम, योर लगेगा। योर टाइम होगा। बहुत अच्छे से पकड़ते हैं साहब। आगे पकड़े के बताइए। नॉट विथ स्टैंडिंग वी आर ऑल बिजी। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है हालांकि या भले ही, भले ही वी आर बिजी, हम बिजी हैं। दैट वीकेंड, उस वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, भले ही का सेंस नहीं हो, कारण यहां शो कर रहा है। क्योंकि हम बिजी थे इसलिए कैंसिल किया, है ना, क्योंकि हम बिजी थे। नॉट विथ स्टैंडिंग की जगह पर आएगा आपका बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज वी आर बिजी, ऑल बिजी, हम उस समय बिजी थे इसलिए कैंसिल। किस पार्ट में? सी पार्ट में आ गया आपका। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट यू से, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर, एज यू मीट हर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। व्हाट यू से जो तुम कहते हो, जैसे कि तुम उससे मिलो नहीं, जब तुम मिलो। जैसे कि तुम उससे मिलो सेंस नहीं होगा, जब तुम मिलो। क्या आ जाएगा यहाँ पर? व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिलो। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट, तुम बहुत ही सावधान रहना। व्हाट यू से जो तुम कहते हो, एज यू मीट हर, जैसे कि तुम मिलो नहीं, जब तुम उससे मिलो। व्हेन यू मीट हर, व्हेन यू मीट हर। एज को रिमूव करिए, व्हेन को स्थापित करिए। पार्ट बी में प्रॉब्लम। वी मस्ट प्लान, we must plan how can we cope with the present situation, cope with present situation। इसमें क्या होगा? we must plan, how जो है यहां पर आया है, जो how एज ए कंजक्शन आया है, नॉट ए क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, कंजक्शन आया है, तो कंजक्शन के बाद जो है वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट आता है। क्यों? जब ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएगा तब जो है हाउ के बाद जो है हम वर्ब देंगे। Can cope with the present situation. तो ये वी को उठा के इधर चिपका दीजिए और कैन कॉप, तब सही हो जाएगा। क्यों? हाँ सही है सर, हाउ वी कैन होगा सर, या तो सर आगे बोलते हाउ वी सही है कैन, सर, हाउ वी कैन
वीकेंड सही है सर यहाँ पे। सही है। द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय अ साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रो swamps of passed through jungle in order to reach the villagers traveled by the cycle often wedding. देखिए, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू स्वयं, यहां तक सेंटेंस पूरा। ऑफन वेडिंग थ्रू स्वयं, आप पास थ्रू जंगल नहीं, यहां तक पूरा हो गया। इसको जो है कंजक्शन देना पड़ेगा। आप प्रीपोजिशन हटाइए, कंजक्शन क्या आएगा, कामा लगाएं यहाँ पर या कंजक्शन एंड दें, तब पूरा होगा। एंड पास थ्रू जंगल इन टू रीच द विलेज, यहाँ पे कंजक्शन की नीड, ना कि प्रीपोजिशन की। यहाँ पर कामा दें या फिर एंड लगाएं, कुछ भी कर सकते हैं। किस पार्ट में दिक्कत है, सेकंड पार्ट। सर कामा से ज्यादा फ्रॉम कामा से सर ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे तो। सर कामा से ज्यादा सुटेबल लग रहा है, स्वयं के बाद कामा लगा के सीधे पास। हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कंजक्शन अगर चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं, नहीं तो कामा। प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज आउट ऑफ स्टेशन, ड्यू टू शी इज आउट ऑफ स्टेशन। कॉमा नहीं आएगा, एंड कंजंक्शन आएगा, वर्ब दी गई है, वर्ब को हम एंड से रिलेट करेंगे, कॉमा नहीं रहेगा। चलिए इसमें बताइए आगे वाले में। मीटिंग ड्यू टू सी इज, देखिए जो ड्यू टू होता है ये बहुत ड्यू टू नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ होगा, बिकॉज ऑफ होगा, बिकॉज ऑफ। जो ड्यू टू होता है ये वर्ब को रिफर करता है ना। और इसी के पैरेलल एक होता है ओइंग टू, ये जो है नाउन प्रोनाउन या फ्रेज को रिफर करता है। और या तो जो अपना बिकॉज ऑफ है, ये भी जो है नाउन प्रोनाउन को जो है रिफर करता है। तो आगे जो है एक सेंटेंस पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर ड्यू टू तो नहीं होगा, वर्ब होती तो सही हो जाता। इसकी जगह पर हम बिकॉज ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कर सकते हैं ड्यू टू की जगह पर, तब सही हो जाए। इसमें बी पार्ट में जोया won the first prize in the race unless she stumbled and fell. unless का क्या होगा, जोया ने के बावजूद का सेंस निकलेगा। यहाँ जोया ने प्राइज जो है पहला प्राप्त किया, बावजूद वो ठोकर लग गई थी, गिर गई थी, के बावजूद, ठोकर लगने के बावजूद भी जो है, गिरने और ठोकर लगने के बावजूद भी उसने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। अनलेस नहीं होगा, अनलेस तो कंडीशन शो करता है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ऐसे कुछ भी एक, इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे तो इन स्पाइट, अनलेस हटाइए, इन स्पाइट ऑफ शी स्टम्बल्ड एंड फेल, उससे गिर जाने के बावजूद भी उसने पहला प्राइज जीत लिया। किसमें आ गया, मिस मार्टेल इज नाइदर अ गुड सिंगर, तुरंत पकड़ लिए होंगे, आर द गुड स्टेज आर्टिस्ट, क्यों नाइदर आया है पहले, यहां पर आया है नाइदर, आगे क्या आएगा, आगे आएगा, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे आप लोग, आगे आएगा नॉट, नॉर आएगा, नाइदर है तो आर को हटाइए, नार लगाइए, क्योंकि यही पेयर बनता है आपका। डी पार्ट,
We had to decline several orders in case that the production was held up due to labor strike. Due to labor strike, ये देखिए जो इन केस ऑफ है, इन केस के स्थिति में नहीं आएगा। क्यों किया आएगा सेंस यहाँ पर? जो इन केस ऑफ है ये दे रहा है कि स्थिति में, क्योंकि प्रोडक्शन बाधित हुआ है तो कारण है। रीजन अगर आ जाएगा तो बिकाज देंगे, इन केस नहीं देंगे, बिकाज आएगा। कौन से पार्ट में आएगी दिक्कत? इन केस किसमें? ए पार्ट में। कॉपरेशन जितना बढ़िया मिलेगा आपका उतना ही बढ़िया काम होगा। माइक जो है ऑन करके बोल सकते हैं और ऐसी स्थिति में ही आप जुड़िए जो आप पढ़ने वाले हैं। राम कथा सुनने का कोई मतलब है नहीं। हम चाहते हैं कि आप हमारे से कुछ ले करके जाएं इस प्लेटफॉर्म से, वरना यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़े हैं, बस एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। She lost a big order from a known showroom in case of her own carelessness. In case of her own carelessness. अब यहाँ पे भी कारण आ गया है तो इन केस हटाइए, उसकी वजह से जो है वो ऑर्डर लॉस हो गया है, कारण आ गया है तो इन केस नहीं होगा स्थिति में। विकास यहाँ पे भी करना पड़ेगा। विकास हमारी राइटिंग थोड़ा अजीब है, समझने की कोशिश करिएगा आप ना। विकास लिखते हुए बढ़िया नहीं बनता है। इस पार्ट में आ जाएगी दिक्कत, इनके साफ है डी पार्ट में। अगला साइक्लोन इडाई killed at least 157 pupils in Zimbabwe and Mozambique, though it more across southern, although यद्यपि का सेंस आ रहा है यहाँ पे, यद्यपि नहीं होगा, कारण दिखा रहा है। although कारण दिखाना होगा हमको, तो यहाँ पर या तो हम एज करें या बिकाज करें या सिंस करें। सिंस कर सकते हैं, क्यों? सिंस इट टोर अक्रॉस साउथ अफ्रीका, या फिर बिकाज कर दे, या फिर कुछ भी कर सकते हैं हम आपको। सिंस या एज या बिकाज कुछ भी हो सकता है, हाल दो नहीं आएगा। हमारे साथ आप लगातार जो है कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट ऐसे कर डालिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और नॉलेज जिनका ऑलरेडी बूस्ट है तो उनका जो है और भी मजबूत होगा। She got two quick promotions in order that she had communicate skills. अब in order that, अब उसके 2 प्रमोशन मिले हैं in order that, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बढ़िया थी, इसलिए उसको प्रमोशन मिले हैं। इन ऑर्डर दैट का यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि बिकॉज दैट शी हैज ए गुड कम्युनिकेटर, उसके पास गुड कम्युनिकेटर स्किल्स थे। बी पार्ट में दिक्कत है। नो सूनर जहां पे आ जाए तो तुरंत पकड़ो, आगे इसके जो इसके साथ में यूज किया जाता है, इसका जुड़वा भाई, उसी में दिक्कत देगा। नो सूनर दिया है, आगे देखो देन होना चाहिए था, व्हेन दे रखे हैं, तुरंत पकड़ लीजिए। यही प्रॉब्लम है इसमें आती है, इसकी जगह देन कर दीजिए, मामला सही हो जाए। नो सूनर देन किस पार्ट में हो जाएगी दिक्कत? डी पार्ट में। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? कनेक्टेड हैं? अकेले ही तो नहीं पढ़ रहे हैं जी? रिप्लाई करिए भाई, कोई है कोई कि नहीं? सर क्लियर है सर। सर अरे तो प्रभु महाशय लोगों रिप्लाई कर दिया करिए, नहीं तो हम पता नहीं चलेगा कि हम जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। समझ रहे? जी सर समझ में अच्छा आ रहा ना, इसलिए सर समझ में अच्छा आ रहा है, इसलिए सर नहीं रिप्लाई किया। अच्छा पढ़ा रहे सर आप। अरे तो हमारे पे भी दया दृष्टि करिए।
आप ही समझते रहेंगे तो फिर जो है हमको पता कैसे चलेगा कि हम समझा भी रहे हैं कि अकेले ही यहाँ पर बतिया रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि डिस्कनेक्ट हो गए, हम अकेले पूरा सेशन कंप्लीट कर डाले, पता चला कि वहाँ पे डिस्कनेक्ट बहुत पहले हो गए थे। तो ये भी चीज हमारे पे भी दया दृष्टि रखिए, थोड़ा बोल दिया करिए समय समय, है ना। Our nation can make significant growth, but if we all work collectively. Our nation can make significant growth, but और if दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये गड़बड़ ये मिस्टेक मामला कर लेते हैं तुरंत पकड़ यस सर, लिया। यही गड़बड़ करते हैं बट को हटा दीजिए। सर। बट को हटा दीजिए, इस पर लगा सही दीजिए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हो गया। इन स्पाइट स्मिता, हाँ बहुत सही बहुत सही। अभी इंस्पाइट है तो डिस्पाइट हो, इंस्पाइट आया तो आप होगा। पहले तो प्रॉब्लम यहीं पर मिल गई आपको, और देख लीजिए कहीं दूसरे तो नहीं कोई दिक्कत है इसमें। मैनी टेलीविजन सीरियल्स अर्लियर दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज गोइंग टू, बाकी सही, बाकी सही है। डी पार्ट में दिक्कत है, मिल गया। फिर सर देन, फिर चेक कर लीजिए, सबसे पहले वही गलती तो इन्होंने नहीं दे रखी है। देन यहाँ देन लगा दीजिए सर जी। यहाँ देन आएगा वेन की जगह। हाँ ये देना देना जाएगा, सही बात है। नो लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट, बट आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। बट नहीं होगा, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ, सर तो फिर बट भी नहीं है मानता क्या? हूँ वो जो है। फिर भी का क्या होता है, एट, बट की जगह पर एट आएगा, एट होगा। सही कह रहे हैं। एट होगा, ए पार्ट। सर यहाँ बिल का बुड भी होगा। ऊपर पास्ट दिया है, पास्ट के साथ पास्ट का कनेक्टर पास्ट होगा। पास्ट होगा ना, बिल का बुड होगा सर। हाँ सर, शी वुड डू होगा। ये भी करप्शन है। अरे तो बोलते रहिए साहब इस तरह से, तो कम से कम दूसरी नजर भी काम करती रहे। इवन शरद tried his best, he could not clear all the examination papers in one attempt. इवन सिर्फ नहीं आएगा, इवन अपने साथ में जो है इवन दो या आल दो कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह पर इवन, इसके बीच में दो या आल कुछ भी आप कर सकते हैं इसको। इस पार्ट में आ जाएगी दिक्कत, बी पार्ट में। As you know that I always like to have ice cream after my dinner. As you know, as जब ऑलरेडी आया है तो दैट नहीं आएगा। एज के साथ दैट का यूज नहीं होता है। दैट को हमको हटाना पड़ेगा। कामा लगा सकते हैं, ये हो सकता है। एज यू नो के बाद कामा लगा सकते हैं, एज ए पंक्चुएशन रूल। दैट हटाना पड़ेगा, ये पार्ट में दिक्कत है। Different colored natural foods not only put a smile on children's face, सर नॉट ओनली but also होता है ना। यस सर, बट लेकिन यहाँ से आल्सो दिया केवल सर। ये क्यों आल्सो दिया, इसकी जगह बट कर दिया जाए, मामला सही हो जाएगा। बट आल्सो हो जाएगा। यस सर। किसमें है बट आल्सो, सी पार्ट। सर डिस्पाइट के साथ इन्होंने तुरंत, हाँ डिस्पाइट के साथ इन्होंने आप लगा दिया, यही गड़बड़ कर दिया। आप हटा दीजिए,
डिस्पाइट में इंस्पाइट ऑफ ऑलरेडी छुपा ही होता है। कौन सा हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। नो मैटर व्हाट दैट द मदर डिड, द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग। नो मैटर व्हाट और दैट जो की सेंस लगा रहे हैं, की का सेंस दे रहे हैं, तो दोनों सेंस एक ही दे, ये दोनों में एक तो सुपरफ्लुअस। व्हाट नहीं आएगा, व्हाट नहीं आएगा, नो मैटर दैट। दैट आगे केवल व्हाट या दैट No में से matter कुछ that. भी आप हटा दो। नो मैटर दैट कर सकते हो, नो मैटर व्हाट भी कर सकते हो, कोई एक में से हटा सकते हो जो का सेंस दे रहा है ना। ए पार्ट में दिक्कत है। दैट वाज ऑल दे हैड टू पे, नो वाटर इलेक्ट्रिसिटी नॉर अदर बिल्स। नो वाटर इलेक्ट्रिसिटी नॉर अदर बिल्स। सर ना रहा है, ना इधर तो नहीं होगा कहीं। देखिए नो जो बात यहाँ पर, नो का इसका कोई मतलब नहीं है, नाइदर आइदर का कोई मतलब नहीं। ये सब अलग अलग ओके फ्रेज दिए हैं। इस नो वाटर से ना कंफ्यूजन हो। ये इलेक्ट्रिसिटी नार नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आर अदर बिल्स होगा। ओके ठीक है, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, कामा से अलग अलग जुड़े सारे अलग अलग सेंटेंस या फ्रेज है। तो यहाँ पर नार का कोई मतलब नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं इसके नार जैसा जोड़ा जाए। ना तो नो दिया है, ना तो नाइदर दिया है। नाइदर दिया वो ना हटेगा, फिर ना हटेगा, फिर आर रहेगा यहाँ पे। आर रहेगा, आर कर देंगे इसको, सही हो जाएगा। किस पार्ट में है? थ्री पार्ट में। इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। इफ यदि नहीं, यद्यपि का सेंस है। दे सेड यद्यपि, दे सेड उन्होंने कहा। शी कुड, इफ वाला होता तो आगे क्लास ये फॉलो होती, इसका मतलब है कुछ नहीं है, वो फॉलो नहीं हो रहा कंडीशन वाला। इफ की जगह पर आप दो या आल्दो लाइए, दो या आल्दो करेंगे इफ हटाकर, तब सही हो जाए। ए पार्ट में इस तरह से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के कंजक्शन पे कर लिए। किसी को किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कस कर लिया जाए। आज जो टेस्ट है वो चल रहा है पब्लिक क्लास पे, ओपन क्लासरूम पे चल रहा है। तो जो 7-15 वाला सेशन है वो ओपन क्लासरूम तैयारी जोन क्लासरूम पे ही होगा। तो सभी पेड और नॉन पेड साथी उसी पे जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं 7:15 पे आप सभी से। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।